the video on current affairs. In this video, we will discuss some important topics, some important current events in the news that are important for exam point of view. So that you can give an idea. Yes, we need to answer for the exam. One of the topics that we will discuss we will discuss about China's complaints against India at the WTO, the World Health Organization, regarding India's PLI scheme. We will talk about India's $12 billion data plan for the DISCOMs, DISCOM state power distribution companies. Okay. And we will talk about the discovery of new quantum waves in superfluid helium. Okay. Let's start one by one. Our first topic for the day is China's complaints against India in the World Health Organization regarding India's PLI scheme. Okay. So, India has launched the PLI scheme in 2020. Okay. PLI scheme means the Production Linked Incentive Scheme. That's the full form of PLI. So, our scheme launched from India. India has launched this scheme to boost domestic production. Okay. And why is this important? India ने ये बोला था, government said that if we produce certain goods at a certain number inside the country domestically, then the government will provide you certain incentives for that. That is the tax कम कर देंगे. उस गूड को एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट को भी कम कर देंगे. ठीक है, उसके रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम कर देंगे. सारे incentives मिलते हैं. ठीक है. So ये आपके objectives क्या था government का? First clear. For a lot of things, such as solar panels, we are heavily dependent on China. Solar panels वगैरह हमारा huge number is imported from other countries like China. Import से क्या होता है? हमारे forex reserve को harm होता है. ठीक है? क्योंकि जब हम import करते हैं तो हम बाहर पैसा पे करते हैं. We cannot pay the people outside India in fees. We pay them in dollars. तो डॉलर देश से बाहर निकलता रहता है. इससे क्या होता है? एक तो हमारा करेंसी का वैल्यू कम होता है. ठीक है? And secondly, हमारा forex reserve फंड होता है. तो what is the way to improve it? इसको improve करने का एक ही तरीका है. जो भी चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको घर के अंदर देश के अंदर बनाना शुरू कर सकते हैं. So to boost that, to encourage people to produce domestically, the government came up with a PLI production linked incentive. आप अगर ये पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करो और ज्यादा अमाउंट करोगे तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएगा. लाइक लो टैक्स, लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो मच सो. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स रिड्यूस इंपोर्ट्स. अगर डोमेस्टिकली गुड प्रोड्यूस हो जाए तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं है. बूस्ट एक्सपोर्ट्स. अगर हम कोई चीज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करेंगे तो डोमेस्टिकली यूज करने के बाद हमारे पास सरप्लस बच जाएगा. एंड व्हाटएवर सरप्लस विल बी लेफ्ट विद अस, वी कैन एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज आफ्टर दैट एंड वी कैन अर्न डॉलर्स फ्रॉम आउटसाइड. बाहर खर्च करने तो छोड़ो, ये अगर हो गया उल्टा हमें बाहर से डॉलर मिलेंगे, बूस्ट अवर प्राइस रिजर्व. ठीक है. एंड इट विल आल्सो अट्रैक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स. इंडिया का बिग इशू इज दैट प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है चीजों. इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनता जा रहा है. ठीक है. वो प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा इंडिया. बिकॉज big companies like Apple, they want to shift their production to India. Tesla wants to have production in India. Why? Because now we are growing as a product-based economy. We have to make sure that India has production better. If production increases, then big global companies will say, ठीक है, India is a good place for production. Because let me set an example. अगर हमारे domestic producer products को easily produce कर पाए, अगर ज़्यादा produce कर पाए, it will be a message for global manufacturers. Like, see, India has a very friendly environment for production, and then global manufacturers will come to India, and India has already started this example for that. That is why companies like Apple are trying to come to India for production. ठीक है. अब चाइना का बुरा लग गया बिकॉज कि अगर इंडिया PLI को आगे लेके जाता है, बिकॉज ऑफ PLI इंडिया प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ जाता है.
और China will take time because they are still heavily dependent on China and it is imported from. एक पॉइंट ऐसा जरूर आया कभी ना कभी that this thing goes on consistently. We will have a huge number of production within our country itself. और तब हमें चाइना से कुछ लेने का जरूरत पड़ेगा. So China may eventually lose the market in India because of the PLI. ठीक है? And that's why China made a company. China said and the WTO, the World Trade Organization, कि इंडिया PLI स्कीम से क्या करने का ट्राई कर रहा है? They are trying to restore the trade. चाइना और इंडिया में ट्रेड करना चाह रहा है. इंडिया चाइना की ट्रेड को रिस्टोर करना चाह रहा है, उसको रिस्टोर तोड़ना चाह रहा है. ठीक है? और यह चाइना ये क्लेम कर रहा है कि यार WTO के रूल्स को वायलेट कर रहा है, रिस्टोरिंग चाइना ट्रेड के लिए. अब किन किन चीज को चैलेंज किया गया है? एडवांस इंडस्ट्रियल बैटरीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इंडिया का ईवी का जो स्कीम है, इंडिया का गाड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो स्कीम है, जो केमिकल बैटरी सेल्स का जो स्कीम है, इन स्कीम को चैलेंज किया गया है. और एलिगेशन ये है कि जो PLI किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, दिस PLI इज एक्चुअली नथिंग बट अ सब्सिडी लाइक इंसेंटिव टू प्रोड्यूस फूड्स डोमेस्टिकली. ठीक है, कि आप डोमेस्टिक वैल्यू बढ़ाते जाओगे और बाहर को देश पर लाभ करते जाओगे. ठीक है, दिस इज द क्लेम बाय चाइना. नाउ चाइना ये कहना चाह रहा है कि जो इंपोर्ट्स है, जो चीजें इंडिया से इंपोर्ट करती है, और WTO का जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल, द नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO says that a country cannot discriminate among other countries for trade. मैं इसके साथ अच्छे से ट्रेड करूंगा बट इसके साथ मैं खराब ट्रेड करूंगा, इसका मैं लॉस कराऊंगा. कंट्रीज कैनॉट डू दैट. चाइना कह रहा है कि इंडिया इज वायलेटिंग WTO नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल. इंडिया इंपोर्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, दूसरे देशों से अच्छा इंपोर्ट करता है, बट चाइना से इंपोर्ट करता है, उससे इंडिया रोक लगा रहा है. सो चाइना इज ट्राइंग टू स्टे एट द फोरम. अब कुछ रिलेटेड प्रोविजंस देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, रिलेटेड टू दिस इशू. फर्स्ट लेट्स लुक एट द आर्टिकल 3 ऑफ GATT. व्हाट इज GATT? WTO आने के पहले, ठीक है, there was another organization known as the GATT, but the GATT did not work out. GATT was succeeded by WTO in the year 1995. ठीक है, तो GATT का क्लियर होता है कि prohibits less favorable treatment of imported goods. ये आपका बेसिकली यही है कि मान लो मैं अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक पर्टिकुलर देश है जिसके इंपोर्ट को मैं कम फेवर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस देश से इंपोर्ट करना बंद करूँ, और बाकी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 3 ऑफ GATT से ये लेस फेवरेबल बिहेवियर मुझे बंद करना होगा. देन आर्टिकल 2.1 ऑफ TRIPS is a part of WTO agreements. ठीक है, for this investment credit requiring domestic products. ठीक है, मतलब TRIPS का आर्टिकल 2.1 ये कहता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट सरकार ऐसा इन्वेस्ट कर रही है कि बस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं यूज होगा, बाहर का प्रोडक्ट कभी यूज करेंगे नहीं. ऐसा इन्वेस्टमेंट सरकार को नहीं करना चाहिए किसी देश में. ठीक है, प्लस SCM एग्रीमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पर इंसेंटिव दे रही है फॉर प्रोडक्शन. इंसेंटिव्स आर फॉर्म ऑफ सब्सिडीज इन सम वे और द अदर. तो ये सब्सिडीज होती है प्रोडक्शन के लिए, सब्सिडीज को SCM एग्रीमेंट के तहत कुछ कुछ टाइप में बांट दिया गया है. प्रोहिबिटेड सब्सिडीज. ठीक है, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज दिस इज कंप्लीटली इलीगल. एक्सपोर्ट ऑन लोकल कंटेंट बेस. ठीक है, सब्सिडी देंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे के मार्केट में जाकर हिस्सा हो जाएगा. दूसरे का प्रोडक्ट बंद करने का 100 प्लस दूसरे कंट्री में लेकर तुम्हारा प्रोडक्ट इस कंट्री के मार्केट में आएगा. ठीक है, तो ये तो प्रोहिबिटेड सब्सिडी हो गया. फिर एक्शनेबल सब्सिडी लीगल होता है बट चैरिटेबल पॉलिसी मार्क. मान लो मैं सब्सिडी दे रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया. जैसे जो प्रोडक्ट बाहर दूसरे देश में बिक रहा है वो दूसरे देश के खुद के प्रोडक्ट से सस्ता होगा, वहां अच्छे से बिकने लगा. ठीक है, उनका मार्केट खाने लगा.
हाँ वो लीगल होता है, ज्यादा मार्केट नहीं खाता है तो लीगल है, बट चैलेंज कर सकते हैं अगर दूसरे कंट्री को उससे इश्यू हुआ तो। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट में जैसे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर किसी रीजियन का रीजनल डेवलपमेंट के पीछे गया पिछड़ा हुआ न्यूट्रिएंट्स को आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो सच रीजन अगर सब्सिडी गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट इन जगह पे सब्सिडी देगी जहां पर स्टूडेंट एक्चुअली, और वहां पर सब्सिडी का बिना काम हो नहीं सकता। सब सब्सिडी का अलाउ करेगी डब्ल्यूटीओ, और सब्सिडी का होना है नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। Now, let's have a look at India's stand and the peaceful process of community. ठीक है, तो इंडिया अपना स्टैंड क्या रख रहा है, तो इंडिया ये कह रहा है कि पीएलआई स्कीम में कुछ गलत नहीं, पीएलआई स्कीम सही है, एंड द पीएलआई स्कीम रिस्पेक्ट्स द डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स एज वेल। इंडिया से कि हर पीएलआई करके डब्ल्यूटीओ के किसी नॉर्म को वायलेट नहीं कर रहे, पीएलआई स्कीम बनाते वक्त वी मेक श्योर दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है। incentives tied to value education, not strictly local content. इंडिया की क्या है कि हम जो इंसेंटिव दे रहे हैं वो लोकल कंटेंट बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे, हम बस वैल्यू बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, दैट्स इट। हमें लोकल कंटेंट नहीं बढ़ाना है, हम किसी और का मार्केट नहीं करना है, हमें बस उनके लिए अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाना है, दैट्स इट। दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द इंसेंटिव्स एंड द स्कीम aim to integrate MSMEs into local chains. Government is saying that due to our scheme दे रहे हैं, सिर्फ बड़े प्लेयर्स की नहीं है, these are not MSMEs, the medium, small and micro industries, ठीक है, ये छोटे मोटे इंटरप्राइजेस है जो अभी तक प्रोडक्शन करने का इतना बड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन के लिए कैपिटल नहीं होता है ज्यादा। सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी विल ट्राई टू प्रोवाइड देम विद दिस इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए द ग्लोबल लेवल, क्योंकि अगर हम एमएसएमई को उठने नहीं देंगे तो उनके अफेयर है, तो वो गांव का सीमेंट कहाँ बेचते रहे, उनका भी हक है कि वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करें, ठीक है, चाइना को नहीं हो सकता है। अब डिस्प्यूट कैसे हो रहा है, ठीक है, डिस्प्यूट का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इंडिया का बीच में कंसल्टेशन हो रहा है, और ये कंसल्टेशन हुआ तो उसके बाद डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट पैनल होता है, डिस्प्यूट पैनल ठीक है, उस पैनल में 3 लोग होते हैं, ठीक है, हम पहले अपना डिसीजन दे देंगे, डिसीजन देने के बाद, ठीक है, आप चाहो तो डिसीजन को दोबारा अपील भी कर सकते हो, अपील हैज टू बी डन विद एपिलेट बॉडी, पर एपिलेट बॉडी अभी करेंटली फंक्शनल नहीं है, डब्ल्यूटीओ की एपिलेट बॉडी इज करेंटली नॉट फंक्शनल, ठीक है, और जो आउटकम है इट कुड टेक इयर्स ड्यू टू WTO रिफॉर्म्स, the reforms in WTO, they are not very strict, they are not very smooth, तो WTO रिफॉर्म में डिलेज होते हैं, उसकी वजह से इस पूरे डिस्प्यूट के आउटकम पाने में सालों साल लगते हैं, इट टेक्स टाइम। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इंडिया का $12 बिलियन बेल आउट प्लान फॉर डिस्कॉम्स, ठीक है, डिस्कॉम्स क्या है, हर स्टेट में से असम में भी है दी एपीडीसीएल, ठीक है, हर स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हो, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन हाउसेस, ऑफिसेस, शॉप्स, मार्केट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, व्हाटएवर, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट में, इट इज मैनेज्ड बाय कंपनीज नोन एज, ठीक है, जितने भी डिस्कॉम्स है देश में, दे आर प्लेग्ड बाय लॉसेस, प्लेग्ड बाय लॉसेस मतलब उनको बहुत लॉस हो रहा है, दे आर हैविंग ह्यूज लॉसेस। नाउ व्हाई आर दे हैविंग लॉसेस, बिकॉज़ पहला टैरिफ सब्सिडीज, हम टैरिफ भरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, हम जितना बिजली यूज करते हैं बिजली का बिल भरना, बट तुम एक चीज नोटिस करना, कभी कभी ये सरकार का पोजीशन की डिस्काउंट, तो ये लोग हमारे लिए क्या करते हैं, कभी कभी टैरिफ की सब्सिडीज देते हैं, इस महीने में आपके इलेक्ट्रिसिटी पे इतने यूनिट पे इतना सब्सिडी,
बीच में दिल्ली में था, आई थिंक अप टू सम 100 to 200 units की इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री, ठीक है, नाउ इट्स नॉट देयर रियल यूज है, ठीक है। तो टैक्स की सब्सिडीज, जैसे सब्सिडीज जब देगा वो अपने पैसे खर्च करके तुमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, फिर तुमसे पूरे पैसे वो नहीं, प्रॉफिट उनका वाला, जितना वो खर्च कर रहा है इतना भी तुमसे नहीं दे रहा है, सब्सिडी दे दे रहा है, तो लॉस तो उसको होना ही। देन नेक्स्ट है, कुछ लोग होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरते, क्या करेंगे, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का लाइन होता है रास्ते पे, वहां से कनेक्शन बना देते हैं, अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लेते हैं वहां से, एंड दे डोंट पे अ सिंगल पेनी, ठीक है। इस तरह का होता है, इंडिया में यहाँ से कैसे होगा, हिंदी होता है, ठीक है, जैसे ह्यूज लोग पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर रहा है, बिल्कुल टाइम लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, गलत बता सरकारी कंपनी एकदम स्टार्ट की नहीं, बिल भरने में लेकिन अस्पताल का होता है। Now, as of March 2024, लास्ट ईयर के मार्च तक हमारे जो डिस्कॉम्स है, ठीक है, उनका कितना डेट कितना है, लोन कितना है, उनके डेट है 7.42 ट्रिलियन रुपीस का, which in dollars is almost 84.4 billion dollars. Huge loan. Loan 7.08 trillion rupees, which is 86 billion dollars. यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 1 ट्रिलियन रुपीस का एक बेल आउट प्लान किया है फॉर द रिसोर्स, 1 ट्रिलियन रुपीस अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। गोल क्या है, गोल एक ही है कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस रिस्पॉन्स रहा है, और इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बिकॉज उनके लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं और उनके लोन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस सेक्टर को इससे डिवाइड करना, ठीक है। ये जो पावर चेन का जो वीकेस्ट लिंक है हमारा, तो वीकेस्ट लिंक इन पावर चेन इज द फाइनेंस, ये इतना वीक हो गया है, इतना स्ट्रेस्ड हो गया है लोन से, डेट से, इसको दोबारा डिवाइड करना है, इज द गोल। एंड कंडीशन क्या है, ये बेल आउट की कंडीशंस क्या है, स्टेट्स मस्ट प्राइवेटाइज और लिस्ट देयर डिस्काउंट्स टू गेट फंड्स, लॉसेस कम लगेगा और लोन्स फंड्स का, पैसे का, इन्वेस्टमेंट का। अब उसके लिए ऑप्शन क्या दिया गया है स्टेट्स को कि या तो अपने डिस्काउंट्स को प्राइवेटाइज कर लो, ठीक है, या अपने डिस्काउंट्स को प्रॉपर्ली यूज करो, इसका कितना लॉस हो, ठीक है, ताकि आपको रिक्वायर्ड फंड मिल जाए। लिस्ट करने का मतलब टू लिस्ट देम ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। अगर डिस्काउंट्स इफ दे लिस्ट देमसेल्फ ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, प्राइवेटाइज तो नहीं होगा प्रॉपर्ली, बट हम जैसे कॉमन लोग शेयर जो स्टॉक्स खरीदेंगे उसको, जिससे उसको पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, दे कैन कवर देयर लॉस। अभी इस बेल आउट में कुछ फीचर्स है, फर्स्ट इज इट्स अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होने वाला है, स्टेट मस्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू प्राइवेट फर्म्स और लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एज आई सेड बिफोर ऑल कंट्री, या तो प्राइवेट फर्म्स के पास ओनरशिप ट्रांसफर करो, अपना जो स्टेक है कंपनीज का वो प्राइवेट को बेचना चाहिए, यहाँ के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो, स्टॉक एक्सचेंज से हम जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद पाए और पैसा इन्वेस्ट कर पाए, उनको फंडिंग मिलता है। और मेजर बेनिफिशियरी कौन होंगे पूरे प्लान में, कंपनीज का लगाने, रिलायंस, टाटा, सीएससी, टोरेंट पावर प्लेइंग बेनिफिट, because they will take, these companies are most likely to take up ownership of many state stocks, ठीक है। अब एफिशिएंसी का टारगेट क्या है, जो हमारा ये लॉस होता है एपीएमसी लॉस, एपीएमसी लॉस मतलब देखो, जब सप्लाई कम है तो सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इधर का साइंटिफिक टर्म, या फिर कहीं लीक हो जाता है, या फिर कहीं चोर होता है जो लाइन अपने घर तक खींच के इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहे हैं, सो ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, ठीक है, एफिशिएंसी टारगेट ये ट्रांसमिशन लॉस को 10% के नीचे रखना,
क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस इतना ज्यादा होगा, पैसे का लॉस इतना ज्यादा, ठीक है। स्टेट्स गेट इंटरेस्ट की लोन्स फॉर 5 years in privatization। अगर स्टेट्स अपने डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करेगी तो डिस्कॉम्स के बेटरमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको इंटरेस्ट की लोन्स मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। और ये जो ऑप्शन मिला है, स्टेट्स को पूरा पूरा ओनरशिप नहीं छोड़ना है, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा ओनरशिप नहीं छोड़ना है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो 26% इक्विटी रख सकती है, 26% शेयर होल्डिंग रख सकती है डिस्कॉम में, तो आपका 74% है। इसको या तो पब्लिक शेयर होल्डर्स को दे स्टॉक मार्केट में, या फिर प्राइवेट शेयर, ठीक है। एटलीस्ट 20% पावर कंजम्पशन बस बाय प्राइवेट सेक्टर टू क्वालिफाई। और आपका जो पावर कंजम्पशन हो रहा है स्टेट में, 20% मिनिमम पावर कंजम्पशन शुड बी बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स शुड at least consume 20% in your state। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो 2015 का उदय स्कीम था, उसके बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म, दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस है, ताकि डिस्काउंट्स को लॉस से बचाया जा सके, ठीक है। प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट भी है, ये लेबर उसको भी सपोर्ट करता है, बिकॉज द अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट saving is discount from losses, saving is discount from credit, encourages private participation and transparency, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे शेयर्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ता जाएगा, पब्लिक मोर फेयर आइडिया, स्टॉक मार्केट में भी लिस्टिंग होगा शेयर्स का, जैसे लोग हमें और फेयर आइडिया देगी, स्टॉक प्राइसेस देगी कि इन कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी, प्लस प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रहा है, ठीक है। If you want us to achieve the 2070 net zero goal, stabilizing power distribution, ठीक है। तो 2070 का net zero goal है, उसको अचीव करने के लिए स्टेट बाय हेल्प करता है। Alright, moving on to the next topic now, ठीक है। The next topic is the discovery of new quantum waves in superfluid helium, ठीक है। So what is superfluid helium, ठीक है। अगर तुम हीलियम को एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ले जाओ, एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो केल्विन, जीरो केल्विन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। सो इफ यू ब्रिंग हीलियम near the temperature of 0 Kelvin, approximately if you bring it near 2 Kelvin, because 2 is almost very close to 0. If you bring it near about approximately at 2 Kelvin, ठीक है, then helium forms in the superfluid, ठीक है। अब what is the unique features, unique properties of superfluid helium? First is zero viscosity. Now what is viscosity? Viscosity is the resistance to flow of any fluid. मान लो you take water in this tank, you take honey in this tank, and I put both my hands like this. Water will easily flow down, and honey will flow down slowly, 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 slowly. That is because water has a lower resistance to flow. Water has less viscosity. Water is less viscous. That is why water flows down easily. But honey, on the other hand, has high viscosity. Honey is highly viscous, has a higher resistance to flow, and that is why honey flows down slowly. But this superfluid helium, with zero viscosity मतलब it can flow very easy. There is no resistance to it. It is a frictionless flow. Friction क्या होता है? Friction is the opposition to our movement. And जब ऐसे चल रहा हूँ, when I'm walking, ठीक है, the flow of helium is automatically having a tendency to push you backwards, ठीक है, in the opposite direction of my movement. That is known as friction. This is the viscosity zero. Resistance is zero. ऐसे चला जा रहा है. And this liquid also defies gravity. This liquid also defies gravity. It can move against gravity as well. Okay? Now what happened is that scientists detected a new wave form confined to nanometer scale with waves. ये जो
सुपर फ्लूइड हीलियम में साइंटिस्ट ने एक क्वांटम लेवल का वेव डिटेक्ट किया, ठीक है, एंड दीज वेव्स आर एक्चुअली वेरी थिन वेव्स, मतलब कि इतने थिन है कि इनका थिकनेस नैनोमीटर स्केल में मेजर होता है। नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, इट्स दैट स्मॉल, ठीक है। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सरफेस और साउंड वेव्स, और ये वेव्स डिस्कवर हुई है सुपर फ्लूइड हीलियम में। These waves are very much different from sound waves. क्योंकि sound waves are not quantum waves. Sound waves are mechanical waves. ठीक है? They are very much different. ठीक है? And reduce unknown aspects of quantum fluid dynamics. Quantum fluid dynamics का जो scientific field है, इसके बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। After discovering these waves, a lot of things about this fluid dynamics has been discovered. अब इस डिस्कवरी के साइंटिफिक सिग्निफिकेंस देखते हैं, इस डिस्कवरी के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो जो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर है, मतलब जो क्वांटम वेव्स है नैनो स्केल पे, मतलब 10 to the power -9 मीटर के स्केल पे उसका बिहेवियर कैसा है वो पता चल जाए। एप्लीकेशन कहाँ यूज हो सकता है इसका? इट कैन बी यूज्ड इन क्वांटम सेंसर्स, इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी टर्बुलेंस, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर नैनो टेक्नोलॉजीज, and it can be used for quantum make quantum materials या stupid properties बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड मतलब इसको सुपर फ्लूइडिटी, सुपर फ्लूइडिटी मतलब एक आराम से बहता है, ये इसको किसी को फटाक से बह जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ऐसा सुपर फ्लूइड समान सात सुपर फ्लूइडिटी was first observed in helium-4। helium-4 में जो helium-4 है उसमें such super fluidity was observed for the first time at what temperature? At a temperature below 2.17 Kelvin. Now 2.17 Kelvin is also termed as lambda point. 2.17 Kelvin to lambda point भी बोला है, तो below lambda point super fluidity was first time observed in helium, ठीक है। अब इंडिया के लिए इसका यूज क्या है? हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है, उसमें इंडिया कभी सपोर्ट करेगा ये रिसर्च, ठीक है। फिर इसरो जो क्रायोजेनिक रिसर्च कर रहा है, ठीक है, टू सपोर्ट क्रायोजेनिक इंजिन रॉकेट्स, उसमें इसरो को हेल्प करेगा। प्लस हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन है टू डेवलप सुपर कंप्यूटर्स इन द कंट्री, दिस विल हेल्प अस इन दैट, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। Thank you everyone for attending the lecture. I hope it will be a helpful session for all of you. And best of luck preparing for your exams. Go through the topics. Read current affairs daily. Bring up to date. Avoid any kind of last minute rush for the exam. Have a good day and share it.